Good evening and welcome everyone to this live session. Hope you guys are doing fine. So guys, in this class we are going to see the factual aspects of Legislative Assembly which are similar to Lok Sabha, and main focus of this class would be on Legislative Council. How the members of Legislative Council are elected, and then what is the difference between the powers of Legislative Council and Rajya Sabha. Okay, how Legislative Council is weaker when it comes to passage of a bill. So how Rajya Sabha has got more powers. There is no provision of joint sitting in the state legislative assembly because Legislative Council has not been given the equal status. Let my latecomer friends join in and then we'll begin with it. Article 170. In the meantime, we will cover this factual detail. Article 170 is subject to the provisions of Article 333. This has been deleted now. This deals with the nomination of one member. This earlier dealt with nomination of one member of Anglo-Indian community. Governor could earlier nominate one member belonging to legislative community. Anglo-Indian community to Legislative Assembly. Now, for the purpose of clause 1, each state shall be divided into territorial constituencies. This is what we saw in our very first or second lecture on Indian Parliament, the Delimitation Commission Act and related things. Clear? These things are there now. Article 170 में से 89 subtract करोगे तो क्या आएगा? The same article deals with it. Okay. So Legislative Assembly की composition, representation of Anglo-Indian community, this and Article 331 which dealt with the nomination of two members of Anglo-Indian community in the Lok Sabha, both of them have been deleted now. Governor of a state may nominate one member of that community. This has been deleted. Clear? Good evening everyone. Namaste guys. Namaste Abhishek. So this is there. Clear hai sabko? By 84th Amendment Act of 2001, total number of seats in the assembly of each state and the division of each state into territorial constituencies has been frozen till 2026. Done. 87th Amendment Act of 2003, the delimitation of constituencies has been based on 2001 census. 95th Amendment Act of 2009 provides for reservation of seats. पढ़ लोगे, ये पढ़ने लायक है. अच्छा, कितने लोग अभी तक इसको पढ़ते हुए आ रहे हो? How many of you are actually reading these things? आज थोड़ा क्लास लंबी लेंगे गाइस, 2 से 2.5 घंटे की क्लास रहेगी, तो प्लीज बी पर्टिकुलर. ओके, 2 घंटे तो मिनिमम रहेगी. उसके बाद आई कांट से एज टू हाउ मच ऑफ एफर्ट वुड आई बी इन्वेस्टिंग. सो कितने लोग जो हैं पढ़ रहे हो इसको, जेन्युइनली जो पढ़ रहे हो? हवाबाजी जो कर रहे हो वो अलग बात है कि सर ने भी नहीं पढ़ा तो हम भी नहीं पढ़ेंगे. ठीक है, तुम लोग अपनी पेस पे कर रहे हो, बट मैं ये कहूंगा थोड़ा ये हाफ गर्लफ्रेंड वाले काम मत करो यहाँ पे. हाफ 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 3 दिन हो गए तुम्हारे को, और जिन्होंने नहीं पढ़ा वो तुमसे फिर भी अच्छे हैं. ठीक है, कम से कम मस्ती तो कर रहे थे, जो जवाब ही नहीं दे रहे. वही वाली बात है, ये वो वाला काम है कि मैं वोट देने तो गया लेकिन बीजेपी को दे आया, आधा काम करके आया. मतलब समझ रहे हो, कांग्रेस को दे आए. तो खुद लड़ना है यहाँ पे, समझ रहे हो ना, चुनाव खुद लड़ना है, ना बीजेपी ना कांग्रेस. थोड़ा ध्यान दे लो इधर. Provided that the said period may, while a proclamation of emergency is in operation, be extended by Parliament by a law for a period not exceeding. Parliament यदि चाहे तो State Legislative Assembly की टर्म को बढ़ा सकती है जब emergency चल रही हो. ठीक है? Provided that the said period may, while the proclamation of emergency is in operation, can be increased by 1 year. ठीक है, कैन बी इंक्रीज्ड बाय 1 year एट अ टाइम. पार्लियामेंट जितनी बार लॉ पास करता जाएगा
उतनी बार ये एक्सटेंड होती जाएगी, बट इन एनी केस नॉट बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 6 months after the proclamation of emergency has come to an end. इमरजेंसी के खत्म होने के 6 महीने के बाद तक कोई ऐसा लॉ नहीं पास किया जा सकता। ज्यादा से ज्यादा इमरजेंसी के 6 महीने के बाद तक लेजिस्लेटिव असेंबली की टर्म एक्सटेंड करी जा सकती है, मैक्सिमम 6 months बियॉन्ड द डेट ऑफ इमरजेंसी। अगर इमरजेंसी 1 जून को खत्म हुई है तो 1 जून से लेकर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 30 नवंबर के बाद कोई लॉ वगैरह काम नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली, इमरजेंसी एक आपातकालीन स्थिति है, एक एबनॉर्मल सिचुएशन को डील करने के लिए उस टाइम पे शायद इलेक्शंस ना करवाए जा सकें, ठीक है। तो इसलिए जैसे ही इमरजेंसी खत्म होगी, लोकतंत्र यानी कि people's representatives elected by the people should govern them as soon as the emergency comes to an end and situation is brought back to normalcy. Speaker, deputy speaker, panel of chairpersons. As we saw in the case of Lok Sabha, all these things are same in the case of state legislative assembly. ठीक है, मैं आगे चलूंगा। आज तुम्हारे लिए ये चीजें मैं स्किप करते हुए चलूंगा। अब it's already 8:37, so there is no point in postponing the lecture or dragging it. I mean, going slow. To certify a bill as a money bill whose decision is final. Speaker certifies the bill as money bill. ठीक है, देखो मैं इसका सीधा सा एग्जांपल बताता हूँ, थोड़ा फनी है। आर्टिकल 199 कैसे याद रखोगे? एक तो 89 माइनस करोगे। कौन मनी बिल को सर्टिफाई करता है? स्पीकर। वहां पे 89 माइनस करोगे तो 110 आ जाएगा। सिंपल 89 ऐड करोगे 110 में तो स्टेट का मनी बिल की बात होती है। स्पीकर का सर्टिफिकेट सेम उसी तरह से फाइनल होता है जिस तरह से लोकसभा के स्पीकर द्वारा मनी बिल को सर्टिफाई किया जाता है। देखो, जब किसी की शादी में जाते हो या पहले जो लोग जब जाते थे तो वो क्या करते थे, फादर जो है मदर से पूछते थे कि कितना शगुन डालना है ना। तो फनी एग्जाम्पल किसी मूवी से ध्यान में आ रहा है, तो वहां पे फादर ये बोलते थे गरीब फैमिली है, तो फादर ये बोलते थे 200, मदर ने बोला 200 रुपए, ठीक है। तो फादर स्टार्ट सर्चिंग फॉर 20 यानी कि 1 रुपया और। मदर बोलती है कि क्या करना है, 1 रुपया और, राइट। 1 रुपया जो है एनवेलप में लगा तो हुआ है, तो जो एनवेलप में लगा हुआ है उस 1 रुपए को मदर काउंट कर लेती थी, ठीक है। तो 200 रुपए हो गए। फादर बोलते हैं फिर भी तो 200 रुपए हुए, तो मदर बोलती है कि नहीं, याद रह जाए जो अच्छी बात है, नहीं तो 89 ऐड कर लेना, ठीक है। तो नहीं, इसमें 1 रुपया और डालने की क्या जरूरत है, ये जो लगा है शादी के उस लिफाफे में उसी से काम चल जाएगा। नाउ टू अलाउ अ सीक्रेट सिटिंग व्हेन द लीडर ऑफ द हाउस, सेम टू सेम है, डिट्टो, सारा कुछ सेम है, ठीक है। यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, रोल ऑफ इंडिविजुअल एमपी और एमएलए इज कमिंग डाउन, हैज डिमिनिश्ड ओवर द इयर्स एंड एज अ रिजल्ट healthy constructive debates on the policy issues are not usually witnessed. How far can this be attributed to the anti-defection law which was legislated but with a different intention? Clear? राजस्थान पॉलिटिकल क्राइसिस ये आप देख चुके हो, हमने पहले भी कवर किया है। गवर्नर, what the law says about the governor's power to summon. राजस्थान गवर्नर टोल्ड द स्टेट गवर्नमेंट। अब राजस्थान में जो गवर्नर है वो बीजेपी के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगाए गए हैं, ठीक है। और राजस्थान में जो सरकार है वो कांग्रेस की गवर्नमेंट है, अशोक कुमार गहलोत की। सचिन पायलट वहां पे बगावत कर रहे थे, सचिन पायलट वाज डिफेक्टिंग टुवर्ड्स बीजेपी। तो राजस्थान गवर्नर को किसने कहा? राजस्थान के चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने यह कहा कि वी वांट अ सेशन टू बी कन्वीन्ड। क्लियर? सेशन को कन्वीन किया जाए ताकि जो बागी एमएलएज हैं उनको बागी होने से, सचिन पायलट के खेमे में जो 13, 14, 15 एमएलएज हैं उनको रोका जा सके। ठीक है। राजस्थान गवर्नर टोल्ड द स्टेट गवर्नमेंट दैट एन असेंबली सेशन कैन बी कॉल्ड एट अ शॉर्ट नोटिस बट विद सर्टेन कंडीशंस। जब कभी रूल ये है, लिख लेना इसे, इफ लिखो, इफ द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स advises the governor if the state
Council of Ministers advises the governor to call a session of the state legislative assembly. Governor is bound to call the session. हमने ये आर्टिकल 85 related to President of India में पढ़ा था. President has a duty to ensure that at least 3 sessions happen in an year, or that at least there is no gap of more than 6 months between the 2 sessions. ठीक है, 6 महीने से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ये आर्टिकल 85 में लिखा है. लेकिन दूसरी तरफ जो आर्टिकल 74 है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये कहता है प्रेसिडेंट टू एक्ट अकॉर्डिंग टू एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यूनियन लेवल पे. सिमिलरली आर्टिकल 163 है, वो ये कहता है गवर्नर टू एक्ट ऑन द बेसिस ऑफ एडवाइस ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. तो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जब गवर्नर को यह कहती है कि पार्लियामेंट का सेशन करवाओ, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का सेशन करवाओ, तो गवर्नर ड्यूटी बाउंड है. ठीक है, लेकिन बीजेपी का साथ देते हुए गवर्नर ने यह कहा कि 21 दिन से पहले यह सेशन नहीं करवाया जाएगा. ठीक है, क्योंकि 21 दिन का मिनिमम नोटिस एमएलए जो बाहर घूमने गए हुए हैं, ये सब जो नहीं है, उनको नोटिस देना जरूरी है. ठीक है, अब राजस्थान के चीफ मिनिस्टर ने यह भी कहा कि हम फ्लोर टेस्ट करवाना चाहते हैं. फ्लोर टेस्ट मतलब कि राजस्थान के चीफ मिनिस्टर के पास क्या इनफ नंबर ऑफ एमएलए हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं. ठीक है, तो गवर्नर ने यह कहानी पढ़ना शुरू कर दिया. उस टाइम पे अभी रिसेंटली जो अप्रैल में जून में, दिस वाज बेसिकली गोइंग ऑन इन अगस्त एंड सितंबर 2020. तो गवर्नर ने ये ज्ञान पढ़ना शुरू कर दिया. तो उस टाइम पे न्यूज़पेपर्स में काफी एडिटोरियल चल रहे थे कि गवर्नर के दायरे में ये सब नहीं आता. अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने कह दिया कि सेशन होगा तो सेशन होना चाहिए. अब गवर्नर स्टार्टेड विद दिस सागा ऑफ रूल्स एंड ऑल. 21 डेज नोटिस का पीरियड, क्योंकि राजस्थान स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के रूल्स में लिखा है दैट अ नोटिस ऑफ मिनिमम 21 डेज शुड बी गिवन. बट अगर एट अ शॉर्ट नोटिस सेशन को बुलाने की जरूरत है, तो क्या गवर्नर को चीफ मिनिस्टर की बात नहीं माननी चाहिए? चीफ मिनिस्टर क्यों अपना सेशन करवाना चाहते थे, ट्रस्ट वोट क्यों करवाना चाहते थे, यहां पे देखते हैं. पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस को जब ये पता लगा कि सेशन जो है हाउस सेशन में नहीं था, जब पॉलिटिकल पार्टी को यह पता लगा सचिन पायलट जो कि को पायलट हैं, वो खुद ही विमान उड़ाना चाहते हैं और डिफेक्ट कर रहे हैं. सचिन पायलट के सहयोगी एमएलए कांग्रेस के हैं, सचिन पायलट कांग्रेस के हैं अशोक गहलोत. अशोक गहलोत काफी अच्छे लीडर हैं, काफी हम्बल हैं, बहुत ही अच्छे इंसान माने जाते हैं, कोई करप्शन नहीं, कोई मोहमाया नहीं. ठीक है, सचिन पायलट को डेप्यूटी सीएम बनाया गया. ये थोड़े यंग हैं, डायनामिक हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया. तो अशोक गहलोत की फेवर में काफी सारे एमएलए थे, लेकिन फिर भी सचिन पायलट ने अपने सहयोगी 13-14 एमएलए को कांग्रेस से तोड़ने की कोशिश करी और बीजेपी में ले जाने की कोशिश करी. जब कांग्रेस को यह सेंस हुआ कि ऐसा हो रहा है, तो कांग्रेस ने अपनी पार्टी की वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाई, स्टेट यूनिट की मीटिंग बुलाई गई एक होटल में. ठीक है, अब कांग्रेस ने सभी एमएलए को यह कहा पार्टी विप इशू करते हुए कि आपका आना जरूरी है. इट इज मैंडेटरी फॉर एवरीवन टू अटेंड दिस मीटिंग. कांग्रेस के ये 13-14 एमएलएज, 19 एमएलएज इंक्लूडिंग 1 सचिन पायलट, दे डिड नॉट अटेंड दिस मीटिंग. तो अशोक गहलोत जो कि सीएम है, उन्होंने स्पीकर कौन है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का? कांग्रेस का स्पीकर है. उन्होंने स्पीकर को यह चिट्ठी लिख दी और पार्टी विप ने ये कंप्लेंट कर दी स्पीकर को कि ये एमएलए पार्टी से डिफेक्ट कर रहे हैं, बगावत कर रहे हैं. ठीक है, दिस इज एन एक्टिविटी इन अ होटल आउटसाइड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. Whereas I have been telling you, anti-defection law conventionally usually has been invoked in the cases of this only, inside the house activities only. ठीक है, अब बॉल गई गवर्नर के खेमे में. अब यहां पे इसको जुडिशियली चैलेंज ना किया जाए, इसलिए अशोक गहलोत ने गवर्नर को यह कहा अंडर आर्टिकल 174 कि आप सेशन करवाइए. अब सेशन ऐसे केस में जल्दी जल्दी होना चाहिए, है ना, लेकिन गवर्नर के ऊपर कोई टाइम लिमिट नहीं थी. 174 के अकॉर्डिंग
गवर्नर के ऊपर बस ये था कि 6 महीने में एक सेशन होना चाहिए। ऊपर से कोविड-19 का बहाना था गवर्नर के पास। गवर्नर किसके द्वारा अपॉइंटेड है? बीजेपी के द्वारा। तो गवर्नर ये चाहते थे कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार बने, ठीक है, इसलिए गवर्नर ने उनकी बात को नजरअंदाज करने के लिए ये कहा कि रूल्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में ये लिखा है 21 डेज का नोटिस एमएलए को देना जरूरी है। इसीलिए कांग्रेस की ये पॉलिटिकल पार्टी जो है अपने 19 एमएलए को जो बागी करार दिलवाना चाहती थी ताकि वो कांग्रेस के साथ ना मिल जाएं और इन्हीं के खेमे में रहें, इसलिए कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी यहां पे नाकामयाब हो गई। लेकिन फिर भी अशोक गहलोत अपनी सरकार बचाने में सक्षम रहे। तो द पॉइंट टू लर्न, पॉइंट टू अंडरस्टैंड इज दैट गवर्नर is duty bound as per the things given in the constitution. Governor is duty bound to accept the advice of council of ministers even with respect to calling the session of the state legislative assembly. Got it? मणिपुर की तरफ लेके चलता हूं तुम्हें। मणिपुर में क्या हुआ? लेट मी रिकलेक्ट द फैक्ट्स ऑफ द केस। यस, मणिपुर में बीजेपी ने कांग्रेस की सरकार को गिराना था। तो कांग्रेस की सरकार और वहां पे जो बीजेपी के गवर्नर हैं, तो गवर्नर ने क्या किया? सेशन को एक रिजॉर्ट में करवा दिया, ठीक है। स्पीकर जो है, स्पीकर बात को नहीं मान रहे थे। एक स्पीकर जो थे कांग्रेस पार्टी के थे, क्योंकि स्पीकर रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी का होता है। स्पीकर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मणिपुर में बागी एमएलए को अटेंड नहीं करने देंगे, उनको जो है डिफेक्टर्स करार दे देंगे। स्पीकर ने ये कहा गया कि ट्रस्ट वोट करवाया जाए। कांग्रेस के जो चीफ मिनिस्टर थे उनके पास बहुमत नहीं है। द चीफ मिनिस्टर ऑफ द कांग्रेस पार्टी इज नो लॉन्गर एंजॉयिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस। तो स्पीकर इज द अध्यक्ष, स्पीकर इज द मेंबर, यहां पे स्पीकर इज द डिसाइडिंग अथॉरिटी। तो स्पीकर ने बोला कि मैं ट्रस्ट वोट नहीं करवाऊंगा। तो यहां पे क्या किया गया? गवर्नर ने एक सेशन बुलाया और ये लिख दिया कि सेशन जो है, सेशन का वेन्यू जो होगा वो एक होटल होगा, ठीक है। होटल में सेशन करवाया गया। बीजेपी के सभी समर्थक एमएलए, सपोर्टिंग एमएलए यहां पे गैदर हुए इस होटल में और यहां पे इन्होंने एक मोशन पास किया स्पीकर को इलेक्ट करने का, ठीक है। स्पीकर को इलेक्ट किया, एक मोशन पास किया। गवर्नर जो कहते हैं कि यहां पे नहीं, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर द गवर्नर टू से दैट the session of the house would occur always in the legislative assembly, ठीक है। if as a makeshift arrangement during the renovation of legislative assembly or otherwise whatever place governor says is going to be hosting the legislative assembly meeting, तो that place becomes the state legislative assembly, ठीक है। बस ये कंडीशन है आर्टिकल 174 में और 85 में that there should be a gap of not more than 6 months between the previous session and the next session, ये रिक्वायरमेंट है। तो गवर्नर ने यहां के स्पीकर को निकाल दिया, कांग्रेस वाले स्पीकर को, और उन्होंने अपना एक स्पीकर इलेक्ट किया और उस स्पीकर ने यह कहा कि ट्रस्ट वोट करवाया जाए। जब इसको कोर्ट कचहरी में ले जाया गया तो गवर्नर के स्टेप को वैलिड माना गया, स्पीकर का निकाला जाना वैलिड माना गया। स्पीकर ने यह कहा कि मैं इस लेजिस्लेटिव असेंबली का गेट ही नहीं खुलने दूंगा, लॉक लगा दूंगा, क्योंकि स्पीकर, ये जो प्रिसिंक्ट्स हैं, ये जो एरिया है, आंगन है यहां का, ये सब स्पीकर के अंडर आता है, ठीक है। अब गवर्नर ने सेशन नोटिफाई कर दिया, स्पीकर ने बोला कि मैं अंदर नहीं आने दूंगा, तो गवर्नर ने बोला कोई बात नहीं, होटल में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बना लेते हैं। Okay, so this is there. Meghalaya issue, where is it? ठीक है, तो ये सारी कंट्रोवर्सीज इस तरह की होती हैं। There are two provisions in the constitution that deal with the governor's power. Under article 174, a governor shall summon the time at a time and place as governor thinks fit. Article 174(2) clause A says that the governor may from time to time prorogue the house. Prorogue मतलब recess, शांति हो गई, छुट्टी हो गई, ठीक है। And 174 allows him or her to dissolve the legislative assembly. आगे चलते हैं। Article 163 says that
governor shall exercise his or her functions with the aid and advice of the council of ministers. But it also adds that he or she would not need their advice if the constitution requires him or her to carry out any function at his or her discretion. But article 174 की जो पावर है, दोनों एक साथ पढ़े जाते हैं, यानी कि 174 calling the session is to be the power of the governor to call a session at a time and place of his thinking should be exercised according to the aid and advice given by the council of ministers. ठीक है, तो ये दोनों को सही पढ़ा जाना चाहिए था, बट गवर्नर राजस्थान के अपनी धुन में थे. सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ऐसे कंडक्ट पे गवर्नर के? 2016 का वर्डिक्ट था नबम रेबिया केस में. सुप्रीम कोर्ट हैड एक्सप्रेसली स्टेटेड दैट गवर्नर कैन समन, प्रोरोग एंड डिसॉल्व द हाउस only on the aid and advice of the council of ministers. But the court clarified that governor had reasons to believe that chief minister and his or her council of ministers have lost the confidence of house. तो ऐसे केस में जब गवर्नर को यह लगता है कि चीफ मिनिस्टर के पास कॉन्फिडेंस नहीं है, तब गवर्नर, अगर चीफ मिनिस्टर ट्रस्ट वोट से बचना भी चाहें, तब गवर्नर सेशन बुला सकते हैं. क्लियर? Done? So these things are there. 2016 का ये केस था. इस केस में अरुणाचल प्रदेश, द टाइमलाइन ऑफ द केस, ये सारा कुछ जो है आपको मतलब पढ़ने की जरूरत नहीं है. तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नर को जब भी लगे कि जानबूझ के स्पीकर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इसको ट्रस्ट वोट से बचने की कोशिश कर रहे हैं, तब ये किया जा सकता है. ठीक है, तो गवर्नर जो है राजस्थान के कलराज मिश्र हैं, जो कि एक टाइम पे कलराज मिश्रा यूपी के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे जब बाबरी मस्जिद वाली चीज हुई थी. ठीक है, बाबरी मस्जिद को जब गिराया गया था, डेमोलिश किया गया था, तो कांग्रेस लेड गवर्नमेंट को नबम रेबिया जजमेंट के चलते अरुणाचल प्रदेश में उस टाइम के गवर्नर राजा खोवा के डिसीजन को गलत, गैर कानूनन बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नबम रेबिया, जो राजा खोवा जो वहां के चीफ मिनिस्टर थे, उनको, उनकी सरकार को रिस्टोर कर दिया. क्लियर? मतलब ये अरुणाचल वाला केस आपको पढ़ने की इतनी जरूरत नहीं है, वैसे मैं हैंडआउट फिर भी दे दूंगा. क्लियर? नबम रेबिया वर्सेस डेप्यूटी स्पीकर, तो उन्होंने उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2016 की इस जजमेंट में ये कहा, अ गवर्नर कैन नॉट एम्प्लॉय हिज डिस्क्रिशन एंड शुड स्ट्रिक्टली अबाइड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द कैबिनेट टू समन द असेंबली फॉर अ फ्लोर टेस्ट. गवर्नर कैन समन द हाउस एट अ प्लेस ओनली ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. तो ये सिंपल सी बात कही गई किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट द्वारा, कि आप ऐसे मनमाने तरीके से ये सब नहीं कर सकते हो. तो ये चीजें बार बार न्यूज में आ रही हैं, अभी राजस्थान में भी ये न्यूज में भी थी. नबम रेबिया में गवर्नर के इस कंडक्ट को, कि गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कहने पे भी राजस्थान में सेशन को आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे, सेशन कंडक्ट नहीं कर रहे थे. सॉरी, कल्याण सिंह, आई एम सो सॉरी अबाउट दिस. यस, कल्याण सिंह वाज द गवर्नर. कलराज और के दोनों मिक्स हो गए. राइट, वो क्या है ना, पतंग सुबह डीएनए से शुरू करा था, पतंग उड़ाने वाला केस, इसलिए के फॉर काइट हो गया. नाउ Rajasthan case, Chief Minister had said that he has the confidence of the House. Hence, the Governor is bound by their Council of Ministers' advice to conduct the session. Merit of the case is clear now. Page number 18. Okay, just 1 minute. आगे आएगा. आप पेज देख रहे हो वर्ड डॉक्यूमेंट का, शायद मैं स्लाइड देखने लग रहा हूं इसलिए प्रॉब्लम हो जाएगी. ठीक है, एमपी पॉलिटिकल क्राइसिस ये भी हमने देख लिया है पहले, तो इसमें भी कुछ ज्यादा नहीं है. डिफेक्शन हुई, अब इसमें डेट मैटर करती है. 2-3 चीजें हैं गवर्नर के ऊपर. एक तो अब नबम रेबिया जजमेंट आपको याद रहेगी, नबम रेबिया 2016 अरुणाचल प्रदेश. मैंने जो मणिपुर का है वो अरुणाचल प्रदेश केस था, बस थोड़ा सा इतना ठीक कर लेना. ठीक है, तो स्पीकर की जगह डेप्यूटी स्पीकर लगा दिया गया. गवर्नर ने क्या किया, उस टाइम पे डेट ऑफ सेशन को एडवांस कर दिया.
जानबूझ के, और जिस डेट को सेशन होना था उससे पहले ही गवर्नर ने सेशन होटल में करवा दिया कि लेजिस्लेटिव असेंबली अगर नहीं भी खुलेगी तो सेशन होटल में हो जाएगा। ये सारी जो फैंसीफुल तरीके थे तो उसको हाईकोर्ट ने गलत ठहराया। उन्होंने ये कहा कि गवर्नर ऑर्डिनरली इज बाउंड, ठीक है। तो 2016 में ये कहा कि आर्टिकल 163 डज नॉट गिव गवर्नर अ जनरल डिस्क्रिशनरी पावर, दे हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो डेट को एडवांस करके इनकम्बेंट कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर को गिराने की ये साजिश थी। नबम रेबिया जजमेंट तो सही है ना सर? नबम रेबिया ये तो सही है ना, सब कर लोगे इसमें, है ना? तो स्पीकर क्योंकि रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी से होते हैं तो इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं। एमपी पॉलिटिकल क्राइसिस वी ऑलरेडी कवर्ड, और सेम चीज हुई थी। तीन चीजें इन तीनों केसेस से निकल के आती हैं। नबम रेबिया जजमेंट में गवर्नर हैज टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन सो फार एज कॉलिंग द सेशन of legislative assembly is concerned, number 1. Number 2, there is no maximum time limit upon the governor to decide a case of anti-defection law. केसेस ठंडे बस्ते में पड़े रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटका के केस में यह कहा कि 3 महीने के अंदर अंदर गवर्नर को ऑर्डिनरली एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत पेंडिंग एंटी डिफेक्शन लॉ की पेंडिंग जो क्वेरीज हैं, जो पिटीशंस हैं, जो पार्टी के विप ने ये कहा कि ये एमएलए दोषी हैं, इनके ऊपर 3 महीने के अंदर अंदर ऑर्डिनरली डिसीजन आ जाना चाहिए। ठीक है, कोर्ट को कर्नाटका के लेजिस्लेटिव असेंबली केस में जहां पे कांग्रेस की सरकार को धक्के से गिराया गया, कोर्ट को कर्नाटका के इस केस में यह कहा गया कि स्पीकर के ऊपर कोई लिमिट लगाइए। कोर्ट ने यह कहा कि हम सिर्फ गाइडलाइन दे सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ को अमेंड करना यह काम पार्लियामेंट का है। तो कोर्ट ने कहा कि इस बात पे विचार होना चाहिए। दैट्स इट। क्लियर? दिस इज देयर। देन अब कांग्रेस के साथ क्या हुआ था इसको थोड़ा सा खुद पढ़ोगे गाइस। उसके बाद अगर कुछ दिक्कत होगी तो आई विल कम बैक टू दिस स्लाइड। ओके, तो पूरा सागा इसमें नरेटेड है बहुत अच्छे से। Incident related to resignation and disqualification. It has raised the question of whether one should link or de-link resignation with disqualification. Disqualification से बचने के लिए कुछ MLAs रिजाइन कर देते हैं। ठीक है, वो बोलते हैं कि हमने तो रिजाइन कर दिया, जब हम मेंबर्स ही नहीं है तो डिस्क्वालिफिकेशन किस बात की। एमएलएज ने स्पीकर को रेजिग्नेशन दिया, कांग्रेस के एमएलएज ने कांग्रेस के स्पीकर को, मुझे मजबूरन ये बोलना पड़ रहा है कांग्रेस के स्पीकर, क्योंकि दिक्कत यह है स्पीकर इज नो लॉन्गर न्यूट्रल कंसिडरिंग द स्टेट ऑफ अफेयर्स इन द कंट्री। तो स्पीकर जो है कांग्रेस के स्पीकर इसलिए बोलना पड़ रहा है, बीजेपी के गवर्नर इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि इन ऑफिसेस को बहुत ज्यादा पॉलिटिसाइज कर दिया गया है। समझ रहे हो ना? तो ये सारी चीजें हैं। तो इट हैज रेज्ड द क्वेश्चन ऑफ वेदर वन शुड लिंक। अब गवर्नर को, जब स्पीकर को रेजिग्नेशन दिया गया तो यह क्वेश्चन उठा कि अगर स्पीकर रेजिग्नेशन नहीं एक्सेप्ट करते तो क्या गवर्नर को रेजिग्नेशन दिया जा सकता है? नो, आई टोल्ड यू इन द अदर क्लास ऑल्सो दैट द राइटफुल अथॉरिटी to accept the resignation of MLAs is speaker, not the governor, because MLAs take the oath before the speaker, not the governor, right? तो MLAs गवर्नर के पास गए, गवर्नर ने बोला चलो मैं तुम्हारा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लेता हूं, लेकिन गवर्नर के लीगल एडवाइजर्स और बाकी एक्सपर्ट्स ने भी ये कहा गवर्नर के गेट पे आप नहीं जा सकते, आपको स्पीकर के पास जाना होगा। स्पीकर इज द राइट अथॉरिटी। अब अगर एमएलएस का रेजिग्नेशन स्पीकर एक्सेप्ट नहीं कर रहे और इस बीचों बीच सेशन को डिले करके लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबली का सेशन करवाया जाता है और उन एमएलएस को पहले डिस्क्वालीफाई करा नहीं जाता, उन एमएलएस को माना जाता है कि वो उसके एमएलएस हैं, तो कांग्रेस को एडवांटेज मिल गई। ठीक है, कर्नाटका में कांग्रेस को एडवांटेज मिल गई क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एमएलए ज्यादा था और कांग्रेस के पास तभी ज्यादा एमएलए थे, कांग्रेस ट्रस्ट वोट जीत गई। बीजेपी ये चाहती थी कि पहले कांग्रेस के एमएलए जो 20 एमएलए उन्होंने तोड़े हैं अपनी तरफ,
वो एमएलएज रिजाइन कर दें, हाउस की इफेक्टिव स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, फिर ट्रस्ट वोट होगा तो बीजेपी जीत जाएगी। लेकिन स्पीकर, क्योंकि वो कांग्रेस से थे स्पीकर, तो स्पीकर ने ऐसा होने नहीं दिया। तो इन एमएलएज ने ये बोला कि हमारा रेजिग्नेशन हमने पहले दिया है, लेजिस्लेटिव असेंबली का सेशन बाद में हो रहा है, तो स्पीकर ने हमारा रेजिग्नेशन पहले एक्सेप्ट करना चाहिए था स्पीकर को, स्पीकर ने क्यों नहीं किया। समझ में आया? तो देयर इज नो टाइम लिमिट ऑन द स्पीकर, you can write it down, there is no time limit on the speaker to accept the resignation of the resigning MLAs. ठीक है, there is no time limit on the speaker to accept the resignation of the resigning MLAs. Number 1, takeaways from all these cases for prelims. Number 2, there is no time limit on the speaker. There is no time limit on the speaker to decide on anti-defection law related matters given in the constitution. There is no time limit in the constitution. Done hai? Number 3, Number 3, it is the speaker and not the governor to whom the MLAs should submit their resignation. It is the speaker and not the governor it is the speaker and not the governor to whom the MLAs can submit their resignation. Clear है ये point? तो ये 3-4 चीजें इन इंसिडेंट से निकल के आती हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ चल रहा था वहां पे। स्पीकर अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ has the power not to accept the resignation if he or she comes to the conclusion that there are sufficient reasons for him to believe that resignation is a consequence of coercion or any other kind of undue influence or inducement. अगर स्पीकर के पास पर्याप्त पुख्ता कारण है कि एमएलएस का जो इस्तीफा है, जो रेजिग्नेशन लेटर है, वो इंड्यूस्ड है नोटों के से या कोई और लालच की हम तुम्हें मंत्री बना देंगे, तो स्पीकर कैन डिसाइड नॉट टू एक्सेप्ट द रेजिग्नेशन। स्पीकर कैन रिजेक्ट द रेजिग्नेशन ऑल्सो, ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ ये कहती है कि स्पीकर की ड्यूटी सिर्फ इतनी है, ये तय करना है कि रेजिग्नेशन वॉलंटरी है, ठीक है। अगर स्पीकर को ये कारण नजर आते हैं कि एमएलए रेजिग्नेशन एंटी डिफेक्शन लॉ से बचने के लिए रेजिग्नेशन दे रहे हैं, तब भी स्पीकर रेजिग्नेशन रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इफ द स्पीकर कम्स टू द कंक्लूजन दैट resignation is effectively connected and linked to the aspect of defection, then perhaps that particular resignation be kept on hold and it need not be accepted, ठीक है। The decision to resign before disqualification was taken because it allows one to become a minister in the current house. Otherwise one cannot become a minister in the current house until one's re-election or the expiry of term, whichever is earlier. लिखो इसको I'm decoding this statement. लिख लो यहाँ पे स्लाइड नंबर, एक मिनट रुकना गाइस, हाँ, गिव मी जस्ट 1 minute, आई एम सो सॉरी फॉर दिस। गाइस 1 मिनट, थोड़ा सा मेरे को बोलने ही दो। ये चीजें ना सेट, मैं क्लास से निकलता हूँ तो आई एम कंप्लीटली एग्जॉस्टेड।
Were you able to hear anything? Just 1 minute. All right, just 1 minute. इन्हीं पीपीटी पे स्लाइड नंबर नहीं आ रहा, बट तुम लिख लो इसकी इंटरप्रिटेशन और डिकोडिंग, ठीक है? Yes, everything with my mic off because I scold very badly, right? 2-3 को रोज डांट पड़ती है. मेरे राहु केतु थोड़े बुरे चल रहे हैं आजकल, इसीलिए मैं कुछ नहीं बोलता ऑन माइक, right? So coming here, if the speaker comes to a conclusion that resignation is effectively, यहां पे देखो दो चीजें बहुत प्यार से लिखना. तुम्हें पॉलिटी से प्यार नहीं हो गया तो मेरा नाम जतिन वर्मा नहीं होगा. अगर पहले सुनना, अगर मैं एक एमएलए हूं और मैं डिस्क्वालीफाई हो जाता हूं तो मैं मंत्री तब तक नहीं बन सकता जब तक मेरा री इलेक्शन नहीं हो जाता. तो पॉइंट नंबर वन इज is re-election absolves an MLA of all his disqualifications and fallouts related to disqualifications. If I am an MLA, I am disqualified. I cannot become a minister until and unless I get re-elected as an MLA. Got it? अगर मैं एक एमएलए हूं और मैं डिस्क्वालीफाई हो गया तो मैं देखो आर्टिकल 163 says that a person could still become a minister. मैं एग्जैक्ट आर्टिकल का क्लॉज तुम्हें बता देता हूं. जस्ट गिव मी 1 मिनट. बहुत प्यार से करेंगे. जहां आर्टिकल डिजर्व करता है ना एनालिसिस करना, वहां पे मैं करूंगा. जहां खुद पढ़ना है तो वहां पे मैं पढ़ूंगा और ये सब करूंगा, तो फिर जस्टिस नहीं होगा सब्जेक्ट के साथ. आई होप यू गाइज आर मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड दिस मच. जस्ट 1 मिनट. आर्टिकल 164 क्लॉज 4, ठीक है? आर्टिकल 164 क्लॉज 4 says that even if I am not a minister, even if I am not an MLA, I could still be appointed as a minister for 6 months. ये हम पहले बता चुका हूं मैं. Minister for 6 months without being MLA, provided I get elected as 6 months. I get elected as an MLA within those 6 months. ठीक है? तो 164 clause 4 ये कहता है. अब प्रॉब्लम पता है क्या है? ये ministers, the decision to resign before disqualification is motivated because it allows one to become a minister in the current house, in the ongoing legislative assembly or Lok Sabha without getting re-elected for at least 6 months. ठीक है? Otherwise one cannot become a minister in current house.
until one's re-election। यानी कि मैंने एक अपराध किया, मैंने जनता के वोट लिए पार्टी ए के नाम से। मैंने बोला मैं पार्टी ए का कार्यकर्ता हूं, मैं पार्टी ए की फिलॉसफी से जुड़ा हूं, मैं उनके हिसाब से काम करूंगा, तुम मुझे वोट दो। उसके बाद मुझे नोट मिल गए या फिर मुझे पोर्टफोलियो का लालच दिया गया कि हम तुम्हें मिनिस्टर बना देंगे। मैंने अपनी पार्टी से दगा किया, मैंने उस जनता से दगा किया। जैसे ही मैं री इलेक्ट हो जाता हूं, मेरी सारी डिस्क्वालिफिकेशन, मेरे सारे पाप माफ। दैट इज व्हाट आई हैव मेड यू राइट। री इलेक्शन एब्सॉल्व्स ऑल दी डिस्क्वालिफिकेशंस। कहने का मतलब यह है, यूपीएससी में अगर कोई चीटिंग करते हुए पकड़ा जाता है तो 5 साल का बैन होता है, लेकिन अगर कोई दोबारा से 5 साल तक एग्जाम ही नहीं दे सकता वो। जब यूपीएससी जैसे एग्जाम में ऐसा है जो कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के अंडर काम करेंगे आईएएस ऑफिसर्स, तो इन नेताओं के लिए ऐसा क्यों नहीं है? सिर्फ री इलेक्शन हो गया तो धज्जियां उड़ा दो एंटी डिफेक्शन लॉ की। फिर री इलेक्शन एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के अंदर बहुत आसान है। मैंने क्या किया, 500 करोड़ की शादी कराने वाले उस मानुष के साथ में लिंक बना लिए, जो साउथ में शादी हुई थी कर्नाटका, बिलारी ब्रदर्स और ये सब, ठीक है। तो वो मुझे 10, 20, 50 करोड़ दे देगा, मैं दोबारा जीत जाऊंगा एमएलए का इलेक्शन। लेकिन मैंने उस पर्सन की मनचाही सरकार को सत्ता में आने से, पॉलिटिकल पार्टी को सत्ता में आने से, सत्ता में आने के लिए, पावर में आने के लिए इस्तीफा दे दिया। मैं उनके लिए शहीद हूं, लेकिन अपने लोगों के लिए मैं गलत हूं। एंटी डिफेक्शन लॉ की मैं उल्लंघना कर रहा हूं। तो शुडंट देयर बी अ बैन ऑन अ पर्सन हु रिजाइन्स अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ। तुम लोग जो आज नहीं आए क्लास में, तुम लोग क्या बोलूं, तुम्हारा दुर्भाग्य होगा ये, जो लोग आज की ये क्लास मिस कर रहे हो। पता नहीं तुम लोग क्यों नहीं रेगुलर होते। मैं आज शाम में बहुत थका हुआ था, ठीक है, मतलब मन कर रहा था सो जाता हूं, क्या करना है क्लास फिर कभी कर लेंगे, ठीक है। फिर लगता है कि नहीं, रिदम बना हुआ है स्टूडेंट्स का भी, तो चलो सैटरडे है, कल रेस्ट भी हो जाएगा और मीटिंग्स भी हो जाएंगी, क्लास मिस नहीं करता। लेकिन तुम लोगों का पता नहीं क्या है, इतनी मन से पढ़ाता हूं, तुम लोग बीच में गायब हो जाते हो। फीस तुमने दी है, काफी लोग हैं, मैं नाम ले सकता हूं, ये साकेत और ये सब, कोई बात नहीं। खैर, दिल हमारा भी दुखता है जब स्टूडेंट्स नहीं आते। ऐसा नहीं है कि अकाउंट में फीस आ गई और काम चल रहा है, ऐसा होता तो फिर अब तक ये स्लाइड्स वाली खत्म हो गई होती। कमिंग हेयर, एंटी डिफेक्शन लॉ में क्या क्या रिफाइनमेंट्स चाहिए, जेवी रिकमेंडेशंस लिखो। व्हाट आर द रिकमेंडेशंस? Re-election should not be allowed to an MLA. Re-election should not be allowed to an MLA for at least till the completion of the present tenure of legislative assembly। मैं अगर एक MLA हूं, मेरा मन किया मैंने रिजाइन कर दिया, या तो मैं मानसिक रूप से बीमार हूं या फिर मैं लालची हूं कि मैंने पैसे लिए, तो अगर मैं हेल्थ वाइज अच्छा नहीं हूं, इफ आई एम नॉट कीपिंग वेल, आई शुड बी गिवन अ लीव कि भैया तुम 5 साल दोबारा इलेक्शन मत लड़ो, है ना। अगर मैं डिस्क्वालिफाइड हूं तो क्या डिस्क्वालिफिकेशन री इलेक्शन के साथ गायब हो जाना चाहिए? नहीं, डिस्क्वालिफाइड एमएलए को एटलीस्ट 5 साल तक क्या नहीं करने देना चाहिए, री इलेक्शन करने ही नहीं देना। उसको चुनाव में खड़े होने पे उस पर बैन लगा दो, तो देखो ये जो री इलेक्शन और रेजिग्नेशंस हैं वो कम हो जाएंगी, है ना। There should be a ban on an MLA from recontesting the elections after voluntary resignation। जो रिजाइन कर रहा है वो 5 साल उसको आराम करने दो, सोच लेगा अगला यूपीएससी करना है या इलेक्शन लड़ना है या एमपी का लड़ना है या बीजेपी या कांग्रेस, जीवन में करना क्या है। एटलीस्ट जनता के वोट खराब नहीं करवाएगा। इट इज इन द पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। अगर कोई एमएलए डिस्क्वालिफाइड है, अब यहां पे ये जो क्लॉज दे रखा है एमएलए, ये क्लॉज ये कहता है कि अगर कोई एमएलए डिस्क्वालीफाई हो जाता है तो वो 6 महीने के लिए मंत्री जो है बिना एमएलए बने नहीं बन पाता। तो 6 महीने के लिए मंत्री बनने का क्या फायदा है? देखो, जो लोग मुंह काला करते हैं ना कि कांग्रेस से बीजेपी में चले गए या बीजेपी में कांग्रेस से चले गए, जनता भी उन्हें निहारती नहीं है। जनता उनको दोबारा जब वो आएंगे तो उन्हें काले झंडे दिखाए जाते हैं। इसलिए अगर वो एमएलए बन जाएंगे तो वो ये दिखाते हैं, देखो भाइयों बहनों, मैं तुम्हारे लिए मैंने रिजाइन किया था ताकि मैं मंत्री बन जाऊं और मैं भाजपा का या कांग्रेस का बहुत बहुत आभारी हूं। आई एम इंडेटेड टू द लीडर
कि उन्होंने मुझे मिनिस्टर बनाया, अब मैं तुम्हारी सेवा अच्छे से कर पाऊंगा, बस आप मुझे वोट दे दो, 6 महीने से पहले पहले मुझे एमएलए बनना है, वरना मेरे मंत्रिमंडल भी चला जाएगा और तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूएंसी का विकास रुक जाएगा। समझ में आया? इसीलिए ये मिनिस्टर्स बनने के लिए डिस्क्वालीफाई ना हो जाएं, बिना एमएलए बने इनको पहले मिनिस्टर लगा दिया जाता है उस पॉलिटिकल पार्टी द्वारा जिसकी फेवर में अब ये हो गए हैं। गॉट इट? तो डिसीजन टू रिजाइन बिफोर डिस्क्वालिफिकेशन इज मोटिवेटेड बिकॉज इट अलाउज a person to become a minister in the current house, otherwise no one can become minister in the current house until one's re-election or expiry of the term। ठीक है, expiry of the term of the house तक आप मंत्री नहीं बन सकते। एंटी डिफेक्शन लॉ में it is clearly written in the anti defection law that a person who has been disqualified in the present house, in the present session or in the present tenure of legislative assembly 5 years, अगर वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है उसके बाद वो री इलेक्ट होके आता है, तब भी वो मंत्री नहीं बन सकता। गॉट इट? Analysis. The flaw in anti-defection law as it stands today is disqualification comes to an end once the MLA under question recontests the election. There is a need to amend the anti-defection law as Anti-Defection and Resignation Act. ये मेरे जैसे इंसान को समझ में आ जाती है जो यूपीएससी में फेलियर है, इनको नहीं आती, इनको आती है। चाय पीने वाले को नहीं आती, आती बनाने वाले को भी आती है, ठीक है, फिर भी पता नहीं क्यों जानबूझ के कंट्री का भट्ठा बिठाया जाता है। बोलते हैं कि कांग्रेस से बदले ले रहे हैं। अरे भैया, तुम्हें कांग्रेस से बदले लेने के लिए वोट नहीं दिया, तुम्हें देश बदलने के लिए वोट दिया है ना। सेटलिंग द स्कोर्स इज द जॉब ऑफ पीपल ऑफ टिमिड माइंडसेट। Reforming the country is the job of statesmen, which is what we expect from our honorable prime minister. Mandate इसलिए नहीं दिया कि तुम इधर उधर के बदले लो, right? तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। Defection is increasingly being used as a way to defect from means of resignation as a form of defection is being increasingly used as a way to defect from one's political party for the grievances। ठीक है, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी को ये बोला जाता है कि भाई तुमने हमें मिनिस्टर नहीं बनाया तो हम जा रहे हैं। सचिन पायलट बोलते हैं कि मुझे को पायलट क्यों बनाया, मेरे नाम के पीछे पायलट लिखा है, तुम्हें समझ नहीं आती, और मेरा नाम सचिन तेंदुलकर है, मैं ओपनिंग बैट्समैन बनूंगा। नहीं बनाया तो चले भाजपा में। ये जो तरीका है वो गलत है, राइट? तो अपनी पार्टी को थ्रेटन करना कि मुझे मिनिस्टर बनाओ, मुझे चीफ मिनिस्टर बनाओ, दिस इज रॉन्ग। नाउ कमिंग टू द अदर एस्पेक्ट, कैपिटलिस्टिक डेमोक्रेसी की लाइट में लिखो इसके, इन द लाइट ऑफ कैपिटलिस्टिक डेमोक्रेसी कांग्रेस के भी पाप कम नहीं है, बहुत पाप किए हैं। मेरा कंसर्न सिर्फ ये है कि एक राष्ट्रवादी नेता वो होता है जो जनता के दिए गए, जनार्दन के दिए गए फैसले को सदुपयोग में करे और कुछ ऐसा एग्जाम्पल सेट करे जैसा अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। आई एम नॉट अ कांग्रेस मैन, आई एम नीदर अ बीजेपी नॉर अ कांग्रेस मैन, इट्स जस्ट दैट कंट्री में जो होना चाहिए वो लोगों के उससे होना चाहिए ना। आगे चलते हैं। इन अ कैपिटलिस्टिक डेमोक्रेसी a relook is required at anti-defection law, and it should be so amended that it recognizes resignation as a form of defection, as मैं थोड़ा तेज बोलूंगा, बाद में कवर कर लेना, ठीक है। As it has become a phenomena, it has become a phenomena in inverted commas, quote unquote, it has become a phenomena to win the election at the behest of money power after resigning और डिफेक्टिंग टुवर्ड्स एन अदर पार्टी, ठीक है, फॉर सम इंड्यूसमेंट और दी अदर। कुछ ना कुछ लालच के चलते
ये एक फिनोमिना सा हो गया है कि रिजाइन करो, इलेक्शन लड़ो। इलेक्शन का पैसा कहां से आता है? पॉलिटिकल पार्टी 100 करोड़ रुपए एक एमएलए को दे देगी और वो एमएलए रिजाइन कर देगा या शहीद हो जाएगा, डिफेक्शन कर लेगा, डिफेक्ट हो गया, सरकार गिर गई, वो एमएलए को वही पॉलिटिकल पार्टी दोबारा से टिकट दे देती है बीजेपी की। ठीक है, अगर वो पार्टी टिकट दे रही है तो फेट अकम्प्लाई बाद में दिख रहा है कि 6 महीने बाद वो पार्टी टिकट क्यों दे रही है, 1 महीने के बाद वो पार्टी टिकट क्यों दे रही है। और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसी और को बीजेपी ने कॉन्टेस्ट भी नहीं करवाया कर्नाटका में। ठीक है, तो कैपिटलिस्टिक डेमोक्रेसी में ये एंटी डिफेक्शन लॉ को चेंज करने की जरूरत है कि अगर कोई रिजाइन करता है तो उसको भी फॉर्म ऑफ डिफेक्शन रिकॉग्नाइज किया जाए। अगर कोई रिजाइन करता है, ही और शी शुड नॉट बी अलाउड टू रीकॉन्टेस्ट द इलेक्शन फॉर अंटिल नेक्स्ट 5 years। ऑन मेडिकल ग्राउंड्स, अगर रेजिग्नेशन है, ग्रेव डिजीज है तो फिर भैया कैंसर कुंसर है तो इलाज करा लो। ठीक है, अगर कोई मानसिक तनाव है उसकी वजह से रिजाइन किया तो सोच लो। अगर तुम्हें लगा कि ऐसे रिजाइन करा है तो भी दोबारा क्यों इलेक्शन लड़ना है। कोई ग्राउंड नहीं है कि रिजाइन करने वाले को दोबारा से इलेक्ट करने दिया जाए। हाँ, अगर वो ये कहे कि मुझे पार्टी बदलनी थी इसलिए रिजाइन किया तो एक ग्राउंड बनता है कि उसको कांग्रेस से जो है आक्रोश था इसलिए वो बीजेपी में जाना चाहता है, राइट। तो फिर भी कंप्लीशन ऑफ हाउस तक, टेन्योर ऑफ असेंबली तक उसको रीइलेक्ट ना करने दिया जाए। ठीक है, TNMLA डिस्क्वालिफिकेशन केस, ये भी थोड़ा सा पढ़ लेना इसको, और कुछ ज्यादा इसमें है नहीं, बस तुम्हें ये पढ़ना था कि अगर कोई डिस्क्वालीफाई हो जाता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उसके बाद क्लियर, तो ये उसको ना कहना। These type of resignations are putting the survival of governments into the peril। ये हो गया no time limit on the speaker to accept resignation। This also you'll cover according to the rules of procedure of the house। A member who desires to resign one's seat in the house shall intimate in writing under one's own hand addressed to the speaker such intention to resign the seat in the prescribed form and shall not give any reason for the resignation। कोई reason देने की जरूरत नहीं है। Provided that where any member gives any reason or introduces any extraneous matter, speaker may while exercising discretion omit such words। Speaker can consider such words as having not been mentioned in the resignation। Speaker ये मान लेंगे कि वो words हैं ही नहीं, and the same shall not be read out in the house। If a member hands over the letter of resignation to the speaker personally and informs that resignation is voluntary and genuine and speaker has no information or knowledge to the contrary, यानी कि अगर स्पीकर के पास कोई और बुनियादी कारण नहीं है कि उसका रेजिग्नेशन वॉलंटरी नहीं है, उसकी खुद की मर्जी से नहीं है, तो स्पीकर को वो रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लेना चाहिए इमीडिएटली। इमीडिएटली के अंदर कोई टर्म मेंशन नहीं है। ठीक है, As such कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, if the speaker receives the letter of resignation either by post or through someone else, speaker may make such inquiry as is considered necessary to get satisfied that resignation is voluntary। ठीक है, अब स्पीकर को क्या किया जाता है, होटल से हयात या वाहयात होटल के, हयात होटल या वाहयात होटल के एनवेलप में आजकल रेजिग्नेशन भेजे जाते हैं। समझ रहे हो, 5 स्टार होटल के एनवेलप में, वो जैसे राजा महाराजा का चिट्ठा खुलता था ना वो स्क्रॉल, वैसे ही ये आजकल खुलते हैं। मैं महामहिम को ये बताना चाहता हूं, कुछ इस तरह से। ठीक है, इफ द स्पीकर आफ्टर मेकिंग अ समरी इंक्वायरी इज सेटिस्फाइड दैट रेजिग्नेशन इज नॉट वॉलंटरी, ही शैल नॉट एक्सेप्ट द रेजिग्नेशन। अब यहां पे क्या लिखा है, समरी इंक्वायरी, जुडिशियल इंक्वायरी नहीं है। ठीक है, तो सिंपल। नाउ अ मेंबर में विड्रॉ द लेटर ऑफ रेजिग्नेशन एट एनी टाइम बिफोर इट इज एक्सेप्टेड बाय द स्पीकर। Speakers shall as soon as may be catch। ठीक है, after accepting the resignation of a member, inform the house about the resignation of the seat by the member and acceptance of such resignation। When the house is not in session, the speaker shall inform the house immediately after the house reassembles। तो resignation
Speaker can accept the resignation even when the legislative assembly is not in session. Speaker, I repeat, can accept the resignation of a resigning MLA even when the state legislative assembly is not in session. Things which are hidden between the line and we tend to ignore them. Originally, the constitution did not contain any provision for acceptance of this resignation by the speaker, and this implied that resignation became effective when it was received by the presiding officer. Originally, constitution में नहीं था. To place a check on the forced resignation, later on these articles were added by 33rd Constitutional Amendment Act to permit a member of the either house of the parliament or MLA of the state respectively to resign. ठीक है, तो फोर्स्ड रेजिग्नेशन हो रही थी, किसी को डराया जाता था कि तुम्हारे खिलाफ सीबीआई की इंक्वायरी हो जाएगी, इसलिए तुम स्पीकर को ये चिट्ठी लिखो. ठीक है, टू रिजाइन हिज सीट बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड. कौन सा अमेंडमेंट एक्ट? 33rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. फोर्स्ड रेजिग्नेशन यानी कि पार्टी के कार्यकर्ता या पार्टी के लीडर ये कहते थे कि तुम रिजाइन करो, इसलिए ये अमेंडमेंट एक्ट लाना पड़ा ताकि किसी को फोर्सिबली रिजाइन ना करवाया जा सके. ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसा नहीं लिखा था. अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए तो याद रखना इसे. नाउ एंटी डिफेक्शन लॉ वी हैव कवर्ड इट ऑलरेडी. ठीक है, ये पढ़ लेना, सेम चीजें रिपीट हो रही हैं. ये थोड़ा सा पढ़ लेना, कुछ इसमें ज्यादा नहीं है. राइट, यस, नथिंग मच. चैलेंजेस क्या है? लॉ इम्पिंज अपॉन द राइट ऑफ फ्री स्पीच. ये यूपीएससी का जो हमने क्वेश्चन देखा था वो इसी पे आधारित था. हाउ टू बैलेंस द राइट ऑफ इंडिविजुअल एमएलएज एंड द नीड फॉर एंटी डिफेक्शन लॉ, ये हमने कवर कर लिया है सारा गाइस. ठीक है, कोर्ट इंटरप्रिटेशंस ऑन एंटी डिफेक्शन लॉ काफी अच्छे से कवर्ड है. ठीक है, तो मेघाचंद्र और ये सारा कुछ. मणिपुर का केस ये है, सुप्रीम कोर्ट ने केशव मेघाचंद्र वर्सेस ऑनरेबल स्पीकर मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली 2020 केस में मेड अ सिग्निफिकेंट सजेशन रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन पावर्स ऑफ द स्पीकर. कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट वाज एडजुडिकेटिंग अपॉन द मैटर रिलेटिंग टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलएज इन द मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली. Court recommended that the parliament should amend the constitution regarding the role of speaker as quasi-judicial authority while deciding the disqualification of persons under anti-defection law. तो क्योंकि स्पीकर पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं, इसलिए कोर्ट सजेस्टेड दैट एन इंडिपेंडेंट ट्राइब्यूनल कैन बी अपॉइंटेड which will substitute the anti-defection adjudication powers of the speaker. ठीक है, एक ट्राइब्यूनल बनाया जाए ताकि स्पीकर जो कि रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी से जिनको इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है, वो एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत किसी एमएलए के खिलाफ या किसी एक एमएलए के खिलाफ पार्टीशन वे में फैसले ना लें, ताकि स्पीकर जो है, ट्राइब्यूनल विल बी हेडेड बाय अ रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज और अ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट. कोर्ट ऑल्सो सजेस्टेड दैट some other outside independent mechanism can be there to adjudicate on such matters. This will ensure that such disputes are decided by both. देखो, मेरा ये कहना है, मेरे को कोर्ट जितनी अकल नहीं है, लेकिन शायद कम भी हो सकती है और ज्यादा भी. मैटर इंटरनल टू लेजिस्लेटिव असेंबली है, अब उसमें कोर्ट जजेस आ जाएं. आजकल तो जजेस भी पॉलिटिसाइज्ड हैं, रंजन गोगोई. मैटर ये है कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एथिक्स एंड प्रिविलेजेस के अंदर ये मैटर लाया जाए, या पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन रूल्स, या कोई ऐसी जो कमेटीज हैं. वैसे तो प्रिविलेजेस कमेटी के अंदर ये, या एथिक्स कमेटी के अंदर आ जाएगा. तो वो कमेटी की जो प्रबलता है ना, यानी कि जो उस कमेटी की स्ट्रेंथ है, एथिकल स्ट्रेंथ एंड न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ, उसको बढ़ा दो, है ना. उसमें कांग्रेस के भी एमएलए होंगे, बीजेपी के भी होंगे, कांग्रेस के भी एमपीज होंगे, बीजेपी की भी एमपीज होंगे, जहां तक लोकसभा की बात है. और एवरी सेक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी शुड बी रिप्रेजेंटेड इन दैट. वो डिसाइड कर लेगी कि इस एमएलए को रहना है या नहीं. लेकिन इसमें रिस्क पता है क्या है? फिर रिस्क ये है कि अगर वो सारे एमएलए पॉलिटिकल अलाइनिंग के चलते वोटिंग करेंगे असेंबली में, तो दिक्कत हो जाएगी. ठीक है, इनको नॉर्म्स को डिसाइड करने की जरूरत है, और स्पीकर के ऊपर एक टाइम लिमिट रखी जाए कि विद इन 30 डेज
of a resignation being submitted within 30 days of an anti-defection petition being brought before the speaker should decide upon it. अगर स्पीकर को ज्यादा टाइमलाइन चाहिए तो स्पीकर स्टेटमेंट ऑफ रीजंस दें जो कि कोर्ट में चैलेंज हो सकेगी. इट विल बी ओपन टू चैलेंज दैट स्टेटमेंट ऑफ रीजंस इन केस द स्पीकर नीड्स एन एक्सटेंशन टू दैट एंड देन दैट मैटर कैन गो टू द कोर्ट. है ना, मतलब पॉइंट ये है कि स्पीकर इंडिविजुअली डिसाइड करते हैं तो वो पार्टीशन है, तो क्यों ना सारी पार्टीज को उसमें मिला लिया जाए. तो पार्टीज मिलाएंगी, बट ये मैटर पॉलिटिकल है, इसमें भी दिक्कत है. लेकिन अगर कोर्ट के जजेस इसमें आ जाएंगे तो फिर ये दिक्कत है कि कोर्ट के जजेस कौन सा आजकल कम है. सभी जजेस की बात नहीं कर रहा, आंध्र प्रदेश में जो हो रहा है वो सारा कुछ ठीक है. तो लेकिन कोर्ट की ये सजेशन आप एग्जाम में लिख सकते हो क्योंकि तुम्हें नंबर चाहिए. ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ पे किस कमेटी ने क्या कहा है इसको पढ़ लेना. हाँ, यहां पे मैंने बताया था एंटी डिफेक्शन लॉ पे दिनेश गोस्वामी कमेटी ने बहुत अच्छी बात कही कि हर गिलास गिरा नहीं और तुम बोलते हो तलाक चाहिए. ठीक है, तो हर केस में एंटी डिफेक्शन लॉ को इन्वोक करने की जरूरत नहीं है. मैंने तुम्हें बताया था 25% मैटर्स पे एमएलए को अपने हिसाब से अपनी मर्जी से बिल पे वोट करने को अलाउ कर दिया जाए. लॉ कमीशन 170th रिपोर्ट डिसीजन अंडर द लॉ शुड बी मेड बाय द प्रेसिडेंट और गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ इलेक्शन कमीशन इंस्टेड ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर. ठीक है, ये एक और चीज है. एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत डिसीजन जो लिया जाता है, जैसे गवर्नर जब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के लिए डिसीजन लेते हैं कि कोई मेंबर ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ऑक्यूपाई कर रखा था या नहीं, तो वो इलेक्शन कमीशन की एडवाइस पे लेते हैं. एंड दैट एडवाइस इज बाइंडिंग ऑन द गवर्नर एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन केस the members belong to Lok Sabha or Rajya Sabha. Similarly, why can't we have a provision under anti-defection law also that matter would be decided by speaker under anti-defection law as per the aid and advice of election commission. This is a very viable proposal. ये देखो इन्होंने लिखा है defectors should be barred from any ministerial or remunerative position for the remaining term of the house. उस टर्म में तो वो मिनिस्टर वगैरह नहीं बन पाएंगे उस सरकार में या केंद्र सरकार में. मैं ये कहता हूं वेंकट चलिया कमीशन मतलब NCRWC ने ये कहा था. अगर कोई एंटी डिफेक्शन लॉ को रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए, वोटिंग डिविएशन फ्रॉम पार्टीज डायरेक्शंस ओनली इन केस ऑफ कॉन्फिडेंस मोशन. सरकार गिरने का मुद्दा हो तो एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होनी चाहिए. किसी बिल पे औने पौने तरीके से वोट कर दिया लेजिस्लेटिव पार्टी की हाउस के बाहर, कांग्रेस ने एक होटल में मीटिंग बुलाई, एमएलए वहां नहीं आए, बोले कि तुम डिफेक्टर हो, ये गलत है. बीजेपी के साथ घूम रहे थे तो तुम डिफेक्टर हो, ये सारी चीजें गलत हो जाएंगी. ठीक है, तो रिस्ट्रिक्ट द लॉ ओनली टू वॉलंटरली. अगर कोई वॉलंटरली अपनी मेंबरशिप छोड़ दे तो, या फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन जब कांग्रेस पार्टी के सीएम के खिलाफ लाई जाए और कांग्रेस का एमएलए उनके खिलाफ वोट दे दे तभी. लेकिन अगर कांग्रेस का एमएलए किसी बिल पे ऑपोजिट डायरेक्शन में वोट कर रहा है तो नहीं. ये हमने कवर कर रखा है पहले. ठीक है, नाउ इसको पढ़ोगे, सारी चीजें पढ़ोगे खुद से. आर्टिकल 93, 178, 93 deals with the central government's power, 94 deals with the state, 178 deals with the state government. ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जक्सटापोज करके दोनों दे रखे हैं. नाउ इम्पैक्ट ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ ऑन लेजिस्लेटर्स डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज. गाइज आज के सेशन के बाद जो भी इसको रिकॉर्डेड भी देखेंगे, जो नीचे वोटिंग का एक वो दे रखा है अप वोट और डाउन वोट करने का, उसे अप वोट या एंग्री दोनों में से या सैड दोनों में से कोई वोट जरूर करना. ठीक है, तो सही मायने में कि तुम्हें क्या लगता है क्लास कैसी थी उस हिसाब से. एंड डू द सेम फॉर ऑल द क्लासेस. मैं कोई वोट देने के लिए नहीं कह रहा हूं और ना ही मैं इसके लिए नोट देने जा रहा हूं, लेकिन तुम्हें थम्स अप या एंग्री सैड वाला फंडा जरूर दे देना. राइट, इट गेट्स अस टू, बिकॉज वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस मोर टीचर्स एंड ऑल पॉल साइंस वगैरह के लिए, तो वी वांट आवर स्टूडेंट्स टू डेवलप दिस हैबिट. क्लियर? डेप्यूटी स्पीकर हैज ऑल द पावर्स ऑफ द स्पीकर व्हेन ही एक्ट्स एज द स्पीकर. ये सारा कुछ तो पढ़ लोगे तुम. अब मैं तुम्हें ले चलता हूं फटाफट. डिफरेंसेस ये पढ़ लोगे गाइस, सिंपल है.
Legislative Council. We still have time. Yes, सेम स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं. हम एक बार ये कवर कर लें, फिर हम दोनों के वे से स्टैंडिंग कमेटीज में एक बार पढ़ा दूंगा. ठीक है, सेम कमेटीज इनके पास भी होती हैं. हाउ एंड बाय विच अथॉरिटी कैन स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बी अबॉलिश्ड? 1983 के पेपर में ये क्वेश्चन आया था. ठीक है, व्हाट इज बाइकैमरल लेजिस्लेचर? मेंशन द स्टेट्स दैट हैव. 1995 उस टाइम पेपर भी जो है आसान होते थे, क्योंकि उस टाइम इंटरनेट वगैरह नहीं होता था. इंटरनेट मुझे याद है उस टाइम चलता था तो बहुत रो के चलता था. ठीक है, मतलब 1998 1999 में अगर इंटरनेट चलता था, मैं तब की बात कर रहा हूं. तो ऑन व्हाट ग्राउंड द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स आर जस्टिफाइड? हाउ इज इट क्रिएटेड और अबॉलिश्ड इन अ स्टेट? तो अब जैसे जैसे हम इंफॉर्मेशन एज में आते जा रहे हैं, क्वेश्चंस भी डायनामिक होते जा रहे हैं और अच्छा भी लगता है प्रिपेयर करना. लेजिस्लेटिव काउंसिल की कॉम्पोजिशन आर्टिकल 171, इनडायरेक्ट इलेक्शन. ठीक है, मेरा नंबर जो रहता है तुमने देखा भी होगा, जतिन वर्मा 71. मुझे ये बहुत आसानी से याद हो जाता है. मुझे लगता है कि मैं इंटेलेक्चुअल हूं, तो मैं लेजिस्लेटिव असेंबली में तो मेरे बस का होगा ना जीतना, लेकिन धीरे धीरे ये कला सीख ली है थैंक्स टू आवर प्राइम मिनिस्टर की कैसे बोलना है. तो मुझे लगता है कि मैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में थोड़े इंटेलेक्चुअल लोग जाते हैं, तो आपका 71 है तो आप भी वहीं जाएंगे, राइट? तो मतलब याद करने का ये मेरा तरीका था, तुम याद करना चाहो तो कर लो. इनडायरेक्ट इलेक्शन, मैक्सिमम स्ट्रेंथ 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ असेंबली. ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली की अगर स्ट्रेंथ 450 है तो इनकी 1/3 हो जाएगी, यानी कि 150. मिनिमम स्ट्रेंथ 40 होनी चाहिए इसकी, नहीं तो कोई फायदा नहीं है. डन. पार्लियामेंट डिटरमाइंस द एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ द काउंसिल. कौन डिटरमाइन करता है? लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं करती, पार्लियामेंट करती है, याद रखना. ठीक है. 5. अब इसकी कॉम्पोजिशन देखो कितनी बढ़िया है. 5/6 ऑफ द मेंबर्स आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड एंड 1/6 आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर. 5/6 यानी कि अगर टोटल 60 मेंबर्स हैं तो उसमें से 50 मेंबर्स इनडायरेक्टली इलेक्टेड हैं. और उन इनडायरेक्टली इलेक्टेड में इनडायरेक्टली इलेक्टेड कैसे होते हैं? और रिमेनिंग 1/6 जो है नॉमिनेटेड हैं अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट नॉर्म्स विच कैन बी मॉडिफाइड बाय द पार्लियामेंट. दीज आर नॉट फिक्स्ड. ठीक है. टीचर्स कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं जा सकते, राइट? अभी देख लेते हैं उसको. सब कुछ पैसे देके जा सकते हैं, बात सिंपल है. ठीक है, फंडेड कॉन्स्टिट्यूएंसी से हम जा सकते हैं. कॉम्पोजिशन यहां पे देखो, ग्रेजुएट्स, यानी कि इनके लिए जो ये 1/12 सीट्स है ना, इनके लिए सिर्फ वो लोग वोट करेंगे जो ग्रेजुएटेड हैं, यानी कि जिन्होंने डिग्री ले रखी है. अगर मैं ग्रेजुएट हूं तो मैं इस 1/12 को वोट करते टाइम, अगर 60 सीट्स हैं तो 1/12 कितना हुआ? 5 सीटें, यानी कि 5/6. हम 60 सीट्स टोटल मान के चल रहे हैं. ठीक है. टीचर्स कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक और 5, यानी कि इनको सिर्फ टीचर्स ही चूज करेंगे. समझ में आया? जो उस स्टेट में जितने भी टीचर्स हैं जो कि प्राइमरी लेवल को पढ़ाते हुए आ रहे हैं, वो इसमें लोग वो कर सकते हैं. बाकी जो 1/3 हैं, यानी कि 20, इसको कौन चूज करेंगे? एमएलएज वगैरह, सॉरी म्यूनिसिपल काउंसिलर्स, मेयर्स वगैरह इनको चूज करेंगे. इनको चुनने में सिर्फ एमसीज ही वोट डालेंगे. ठीक है. असेंबली मेंबर्स, एमएलएस जो हैं 20 और मेंबर्स एमएलएस चूज करवा सकते हैं, नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर. 1/6 यानी कि 10. So sorry. Got it? Now coming here, is this clear? This is the election criteria. इनको ग्रेजुएट्स को जिनको वोट डालना है, ग्रेजुएशन का अपना वोटर आईडी कार्ड और ये सब दिखा के वोट बन जाता है इसका. ठीक है. सेपरेट इलेक्टोरल रोल होता है इनका, टोटली सेपरेट. क्लियर है सबको? ट्विंकल, एनी डाउट इन दिस? You seem to be having some doubt or something. Now,
Article 172. Legislative Council of a state shall not be subject to dissolution, but as nearly as possible 1/3 of the members thereof shall retire. जैसे राज्यसभा में 1/3 members retire होते हैं, वैसे ही यहाँ पे retire होते हैं. मुझे पर से I for one I like this criteria very much because लोकल बॉडीज के साथ में ये क्या है, सब फेडरलिज्म है. इसको हम सब फेडरलिज्म कह सकते हैं. क्वेश्चन लिखो, समझ में आए तो ही तो पूछ लेना, नहीं आए तो पूछ लेना. द क्राइटेरिया फॉर इलेक्शन ऑफ MLCs, the criteria for election of members of legislative council gives importance to sub federalism. फेडरलिज्म के ऊपर the criteria for election to the criteria for election of MLCs, members of legislative council, gives importance to sub federal level. फेडरल लेवल होता है यूनियन से स्टेट्स का, ठीक है, ये तो फेडरल हो गया. तो अब इसके नीचे अगर हम जाते हैं तो वो सब फेडरल लेवल है लोकल बॉडीज का. अब आप क्राइटेरिया में देख रहे हो, जहां तक लोकल बॉडीज अपने कुछ मेंबर्स को या लोकल बॉडीज के म्युनिसिपल काउंसिलर्स जब 20 लोगों को ऊपर भेजेंगे जो कि लेजिस्लेचर के पार्ट स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में बैठेंगे, तो सब फेडरलिज्म ऊपर आ रहा है. यानी कि जैसे दूध बॉयल होता है तो वो ऊपर नीचे गोल गोल घूमता है, अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है. तो वैसे नीचे के इश्यूज म्युनिसिपल काउंसिल में जो मेंबर्स ये 20 इलेक्ट होंगे लोकल अथॉरिटीज के मेंबर्स द्वारा, दे विल ब्रिंग टू फोर FORE द इश्यूज ऑफ लोकल गवर्नमेंट, द इश्यूज ऑफ रेलेवेंस टू लोकल गवर्नेंस. समझ में आया? अगर मान लो कि ऊपर के लेवल पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में बीजेपी जीत गई, ठीक है, और नीचे कांग्रेस कांग्रेस जो है लोकल बॉडीज में काफी इफेक्टिव रोल प्ले कर रही है, और बीजेपी की स्टेट लेजिस्लेचर कांग्रेस रन लोकल बॉडीज को पर्याप्त पैसे वैसे नहीं दे रही, फंडिंग नहीं दे रही, सपोर्ट नहीं कर रही. तो ये 20 MLCs 60 में से 20 मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल जो कि लोकल अथॉरिटीज में अगर कांग्रेस के MLCs, कांग्रेस के म्युनिसिपल काउंसिलर्स, वार्ड के मेंबर्स जो हैं वोट देंगे, तो नेचुरली लेजिस्लेटिव काउंसिल में यही लोग जीतेंगे, है ना. तो फिर यानी कि एक म्युनिसिपल काउंसिलर भी खड़ा हो सकता है. म्युनिसिपल काउंसिलर अगर खड़ा होगा तो सभी कांग्रेस के लोग उसे वोट देंगे, वो ऊपर जाएगा और ये बोलेगा कि लोकल बॉडीज को सपोर्ट नहीं किया जा रहा. तो जैसे लोकसभा में जो मुद्दा उठता है, दिल्ली के नेशनल डेलीज में, न्यूज़पेपर्स में प्रिंट हो जाता है, नेशनल इशू बन जाता है, वैसे ही स्टेट लेजिस्लेचर के एक अहम अंग, एक ऑर्गन लेजिस्लेटिव काउंसिल में यदि ये 20 MLCs ये मुद्दे को उठाएंगे, लोकल बॉडीज के मैटर्स को उठाएंगे, तो वो स्टेट के कैपिटल में एक मुद्दा बन जाएगा और लोकल न्यूज चैनल्स के लिए एक स्टोरी हो जाएगी और पब्लिक इशू ये बन जाएगा. समझ में आया? क्लियर है? नॉइज कैंसिलेशन इज देयर आई सपोज. आवाज काफी बड़ी हुई है इसकी, इसीलिए ऐसा हो रहा है. ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट. मैं आज थोड़ी तेज बोल रहा हूं इसलिए भी हो सकता है. गोपेश, इज इट फाइन नाउ? एक काम आप भी करो गोपेश, एक नॉइज कैंसिलेशन वाला एक ईयरफोन्स आते हैं, माइक एंड ऑल, वो भी आप भी ले आओ, ठीक है. मैं भी यहां से कम करूंगा, आप भी कम करो. एक बहुत अच्छे वाले आते हैं, ठीक है, 2-3 हजार के, वो आप भी ले आओ. दिस वॉज ऑन अ लाइटर नोट. क्लियर है अब? तो तुम लोग पहले सो रहे थे, ही रेज्ड हिज वॉइस, बाकी लोग क्या सो रहे थे या बाकी लोगों के पास अच्छे वाले ईयरफोन्स हैं? क्लियर है? तो ये नॉमिनेशन बाय गवर्नर,
एक तो ये क्राइटेरिया इंटरेस्टिंग है कि लोकल बॉडीज के इलेक्शंस वगैरह के मुद्दे ऊपर उठ के आएंगे। मेरे हिसाब से इस परसेंटेज को और बढ़ाया जाना चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए सब फेडरल लेवल का, तो तुम्हें मेरे भाइयों बहनों तुम्हें ये पता होना चाहिए सब फेडरल लेवल का मतलब क्या होता है। समझ में आया भूपेश? इट वॉज ऑन अ लाइटर नोट, ठीक है। और अच्छे वाले ले लो, अगर पहले से 2-3 हजार वाले तो 6,000 वाले ले लो। नाउ Legislative Council of a state shall not be subject to dissolution, but as nearly as possible, 1/3 members shall retire. Members can be re-elected or renominated any number of times. Clear? So, Legislative Council, same, presiding officers and all. क्लियर है ये सबको? प्रेजाइड ये सारा कुछ सेम टू सेम है। अब मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ लेजिस्लेटिव काउंसिल दिस इज ऑल्सो डन, ऑल डन। डेप्यूटी चेयरमैन ये भी ठीक है, पढ़ लोगे खुद से। ऑल सेम, दैट इज व्हाई आई एम स्किपिंग ऑन दीज स्लाइड्स। The provision of the money bill are similar to that of the problem was from my end only. I was just taking you for a ride. I was pulling your leg. Okay? इतने शरीफ मत बनो, इतने तुम हो भी नहीं। Now, Council does not take part in the elections of the President and Rajya Sabha as Legislative Assembly. Point to be noted. ठीक है? Provisions for a money bill are similar to that of money bill in the Lok Sabha. Legislative Assembly introduces and passes the money bill. Same. Decision of Legislative Assembly prevails over that of Council. There is, लिखो, there is no provision for joint sitting in. There is no provision for joint sitting in case of state legislature. There is no provision for joint sitting in case of state legislature. The decision of legislative assembly prevails over that of council with respect to a constitution amendment bill given to the states for ratification. Clear? Then, Legislative Council, utility of Legislative Council facilitates a bill to be studied more effectively. ये रिटायरमेंट पोस्टिंग के लिए जो लोग नहीं जीत पाते वो यहाँ पे अकोमोडेट हो जाते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में। लेजिस्लेटिव असेंबली में एमएलएस जो नहीं बन पाते या जिनको टिकट नहीं दिया जाता, अब अगर मैं अपनी पार्टी का चीफ हूँ, ठीक है, तो मेरे को पता है कि ये जो लोग हैं ये इंटेलेक्चुअल बहुत अच्छे हैं और ये पार्टी के लिए भी अहम है, पार्टी की रेपुटेशन ये खराब कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत ये करेंगे कि अगर इनको टिकट ना दी तो ये मेरी पार्टी की रेपुटेशन खराब कर देंगे। इसीलिए मैं एमएलए के लिए तो उनको टिकट दूंगा जो क्रिमिनल्स हैं, भले ही जो कुछ भी हैं, बट उनका विनेबिलिटी कोशेंट बहुत अच्छा है, उनको मैं जितवा दूंगा। फिर ये लोग नाराज ना हो जाएं, इनको मैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में भेज दूंगा, इनको ये बोलूंगा घबराओ मत, तुम्हारे लिए एक रिटायरमेंट चेंबर बनाया है जिसका नाम है लेजिस्लेटिव काउंसिल। वेरी नाइस सालसाबिल, एंड यू आर प्लेइंग एज अ मॉडरेटर, वेरी नाइस। अब यहां पे देखो अगर कोई बिल लोकसभा में जाता है, राज्यसभा उसे रिजेक्ट कर देती है या राज्यसभा उसे पास नहीं करती, तो क्या माना जाता है? डेडलॉक। कितने टाइम में राज्यसभा को वो बिल पास ना किया जाए तो डेडलॉक एज्यूम कर लिया जाएगा? If bill transmitted from Lok Sabha to Rajya Sabha is not passed up to certain time limit, it is considered to be a deadlock and President can invoke Article 108 and can notify joint sitting. Clear है? 6 months. लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अगर राज्यसभा को एक बिल पास करे, लेजिस्लेटिव काउंसिल को एक बिल पास करे और अगर वो बिल लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं रिटर्न करती विद इन 3 months, तो वो बिल
वापस आ जाएगा। 3 months के बाद स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में दैट बिल comes back. We are talking only about ordinary bill because with regard to money bill the provisions are all same. 14 days के अंदर अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली बिल पास करेगी, लेजिस्लेटिव काउंसिल को पास करना ही करना है। मनी बिल 14 days, सेम प्रोविजंस आर देयर। बट अब जब ये बिल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास कर दिया, 3 महीने तक लेजिस्लेटिव काउंसिल ने उस बिल को पास नहीं किया, तो वो बिल ऑटोमेटिकली ये मान लिया जाएगा लेजिस्लेटिव असेंबली के पास रिटर्न आ गया। या 3 महीने के अंदर अंदर अगर वो उसे रिटर्न कर दे लेजिस्लेटिव काउंसिल कुछ अमेंडमेंट्स के साथ, अगर लेजिस्लेटिव असेंबली को वो अमेंडमेंट्स पसंद नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है, लेजिस्लेटिव काउंसिल दोबारा से ये बिल को भेजेगी। अगेन द बिल विल बी सेंट, दिस टाइम इफ legislative council does not return the bill within 30 days, second journey 30 days, first journey 3 months, तो ये मान लिया जाता है कि bill as it was sent by legislative assembly the second time is finally passed। ठीक है, पहली बार बिल गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल ने वो बिल पे कुछ सजेशंस भेज दिए, 1 महीने में भेज दिए, 2 महीने में, मैक्सिमम 3 महीने में भेज दिए। लेजिस्लेटिव असेंबली को वो जो रिकमेंडेशंस हैं, अमेंडमेंट्स हैं, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। लेजिस्लेटिव काउंसिल उन रिकमेंडेशंस के वो देखेगा, अगर पास कर दिया बिल तो बिल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाएगा अमेंडमेंट्स या बिना अमेंडमेंट्स के। 30 दिन के अंदर अंदर दूसरी बार जब बिल जाएगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल को वो बिल पास करना है विद इन 30 डेज। अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल वो बिल पास नहीं करती तो आफ्टर 30 डेज ये मान लिया जाएगा द बिल एज इट वाज सेंट बाय लेजिस्लेटिव असेंबली हैज बीन पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव काउंसिल। सो लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन नॉट स्टॉप द बिल, दैट इज व्हाई देयर इज नो प्रोविजन फॉर जॉइंट सिटिंग। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन नॉट स्टॉप द बिल परमानेंटली फ्रॉम बिकमिंग एन एक्ट। Maximum time period for which legislative council can delay the bill is 4 months, 3 plus 1. First instance 3 months, second time again if the bill is sent again 1 month. So this is just a delaying chamber. Legislative council, that is why is called a dilatory chamber. Dilatory means delay, हेस्टी लेजिस्लेशन से बचाता है। ठीक है, राज्यसभा डेंजरस लेजिस्लेशन को रोक सकता है। ये सिर्फ हेस्टी, जल्दबाजी में पास अगर कोई लॉ किया जा रहा है तो लेजिस्लेटिव काउंसिल उसमें 4 महीने की बाधा उत्पन्न कर सकता है। क्लियर? लास्ट एंड द मेजर डिफरेंस हमने यहां पे पढ़ा, लेजिस्लेटिव काउंसिल में गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली में गवर्नर कुछ मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं। पढ़ा था लेजिस्लेटिव राज्यसभा में प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट हाउ मेनी मेंबर्स, प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट हाउ मेनी मेंबर्स टू राज्यसभा, प्लीज आंसर। अभी इन कंपैरिजन पढ़ लेना इसको। लेजिस्लेटिव काउंसिल में हमने पढ़ा था लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस, इन 4 फील्ड से जो प्रेसिडेंट हैं 12 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं। लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस। क्लियर? इस केस में एक और, लेजिस्लेटिव काउंसिल में गवर्नर जब मेंबर्स को नॉमिनेट करेंगे तो कोऑपरेटिव मूवमेंट, किसी पर्सन ने, जैसे कि अमूल की सेटअप करा गया, गवर्नर अमूल को सेटअप किया गया गुजरात में, तो जो पर्सन कोऑपरेटिव मूवमेंट को स्टार्ट करने में, कोऑपरेटिव सोसाइटी को स्टार्ट करने में अपना योगदान दे चुका है, उसको भी यहां पे अपॉइंट किया जा सकता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल में देयर इज वन मोर फील्ड
from which governor can choose this person. These persons who are to be nominated to Rajya Sabha or to the Legislative Council by the governor, these persons are not the favorites of the governor, or they are not from his family. They could be from his family, but they are suggested to him by State Council of Ministers. ठीक है. On the aid and advice. ठीक है. Literature, science, art, social service and cooperative movement. One more ground is there. That's the only difference. Rest of it is a cakewalk. If you have properly studied and haven't missed any lecture on Lok Sabha and Rajya Sabha. If you haven't covered, please cover the Lok Sabha and Rajya Sabha first and then watch it. ठीक है. Sessions of State Legislature ही हमने अभी कवर भी किया है, तो ये सारा कुछ अब खुद पढ़ोगे. मेरी तरफ से स्टेट लेजिस्लेचर ओवर है. गवर्नर और प्रेसिडेंट की भी एक पीपीटी जल्द ही कुछ ही देर में आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी, और संडे और सैटरडे सेलिब्रेट करोगे इन पीपीटीज के साथ में. और एक आध पीपीटी और भी मैं शेयर कर दूंगा जो इनसे रिलेटेड है. फिर उसके बाद हम आएंगे सीधा कुछ इस तरह से पीपीटीज को आगे, स्लाइड्स को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे. ठीक है. स्टेट लेजिस्लेचर प्रोसीजर सब कुछ सेम है. स्टेट एग्जीक्यूटिव गवर्नर, ये इसमें है ही गवर्नर. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और ये सब थोड़ा सा देखोगे. एक पीपीटी में और शेयर कर दूंगा. ठीक है. कुछ है नहीं इसमें गाइस. पढ़ाते रहूंगा मैं, पढ़ते रहोगे तुम, तो फिर दिक्कत हो जाएगी. ठीक है. गवर्नर की पावर्स, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, थोड़ा ग्लिम्स ले लो. तुम ये मत बोलो कि झलक भी नहीं दिखलाई और शादी करवा दी ना. समझ रहे हो ना. SC ST ये सब सारा कुछ सेम है. आर्टिकल 161 गवर्नर की जुडिशियल पावर्स, जो अभी हमने CBI राजीव गांधी केस वाली चीज पढ़ी थी, जो न्यूज़पेपर में कल परसों फिर आई थी. डिफरेंसेस बिटवीन द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, सरकारिया कमीशन और ये सब. SR बोमई जजमेंट, सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशंस को ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का अगर ब्रेक डाउन हो जाए, पढ़ना है एक बार, नहीं होगा तो फिर करेंगे, बट बिना पढ़े मत आना अगली क्लास में, क्योंकि फिर तुम्हें शॉकर लग सकता है. अभी तुम्हें पढ़ा देता हूँ. गवर्नर इज एक्सीडिंग, ये DNA से कुछ चीजें कवर करी हैं यहाँ पे. ठीक है. दिसंबर 2018 कुछ नहीं बचा इसमें, मैं सच बता रहा हूँ. चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ये हमने कवर कर ही रखा है. स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये कवर नहीं किया, बट ये बहुत आसान है. फिर एडवोकेट जनरल, ये चलो मैं करवा दूंगा. फिर जब मैं ये कराऊंगा तो तुम ये समझ लेना प्राइम मिनिस्टर के भी सेम फंक्शंस होते हैं. बट हाँ, PMO वी विल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट क्लास. PMO वी विल बी कवरिंग. गाइस एक मिनट. Rajiv Gandhi governor issue, the Supreme Court has revised the guidelines recently. We need to incorporate that in this PPT itself, near the judicial powers of the governor, article 161. I'll give you one PPT dealing with Rajiv Gandhi assassination case. ये हो गया. अभी मैंने लास्ट में क्या बोला था तुम्हें? We need to cover PMO. Please dig out the PPT related to Prime Minister's office and share the same with me before the next class on Monday. Thank you. So sorry for this, I could have put it on mute mode also, but तुम्हें भी पता होना चाहिए. देखो, PMO is important. PMO, Prime Minister's office, कब it comes to glory, कब it reclines into you can say dormancy. ठीक है. कब वो dormant हो जाता है, कब वो पावर में आ जाता है. PMO तब ज्यादा पावरफुल होता है जब प्राइम मिनिस्टर बहुत पॉपुलर हो. इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और जवाहरलाल नेहरू, उनका PMO बहुत सॉलिड था. प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के टाइम PMO ज्यादा नहीं था. कैबिनेट सेक्रेटेरिएट वर्सेस PMO, ये कंपैरिजन हमें करना है. ये गवर्नेंस में भी किया जा सकता है, बट यहाँ पे अगर हो जाएगा तो बेटर होगा. ठीक है. ये मैं कवर करा दूंगा. उसके चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर अगले लेक्चर में कवर हो जाएंगे, तो दोनों आपको साथ साथ कवर्ड मिल जाएंगे. देन स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, दिस इज द सेम एज द सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल एक साथ कवर हो जाएंगे. जम्मू एंड कश्मीर, दिस विल बी कवर्ड इन दी नेक्स्ट क्लास. फिर ये स्टेट्स का, फिर यूटीज कवर होंगी शायद. इसमें कुछ अपडेशंस अभी बाकी हैं. फिर स्टेट से रिलेटेड अदर स्पेशल प्रोविजंस, सिटीजनशिप,
ये टॉपिक्स थोड़ा मैं बाद में कवर करूंगा, पहले तो मैं पूरा जो मेन पंचायती राज है वो सारा कवर होगा, इमरजेंसी कवर होगा इसके बाद, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी वगैरह वो सब कवर होगा। नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, आर्टिकल 356, 351, 352 ये सब कवर होंगे। फिर उसके बाद सेंटर स्टेट रिलेशंस से पहले वी विल बी कवरिंग दी स्टैंडिंग कमिटीज आफ्टर दी इमरजेंसी टॉपिक इज ओवर, ठीक है। देन वी विल बी कवरिंग दिस पार्ट, स्टैंडिंग कमिटीज, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज के साथ साथ ये जैसे पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज ओवर होगा, सेंटर स्टेट रिलेशंस अगेन दैट लेक्चर विल प्रोसीड वेरी फास्ट, क्योंकि चीजें कवर्ड हैं, बस उनको पैराफ्रेज करके कंपेयर करना है, सेंटर और स्टेट्स की क्या क्या पावर्स हैं, क्लियर। फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, 2-2 घंटे से कम के लेक्चर्स ये नहीं होंगे, सो बी पर्टिकुलर अबाउट दैट। अभी इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, थोड़ा और कंटिन्यू करते हैं, आगे चलो। तो ये जो पीपीटी है, आप आर्टिकल सिटीजनशिप पर भी पढ़ाऊंगा तो थोड़ा कंफ्यूजिंग सा हो जाएगा तुम्हारे लिए, तो ये मतलब इजी सा है, तो ये पढ़ लोगे वही बहुत हो जाएगा। आई विल शेयर दी पीपीटी रिलेटेड टू दी गवर्नर एंड दी प्रेसिडेंट, कंपैरिजन ऑफ गवर्नर एंड प्रेसिडेंट, ओके, ये कवर हो जाएगा। प्रतीक क्या लिख रहे हो? ओके गाइस, तो आज के लिए इसे खत्म करते हैं अभी के लिए। गवर्नर इज एक्सीडिंग हिज अथॉरिटी, जब जे जयललिता की डेथ हुई तो ये सारी चीजें हो रही थी वहां पे, ठीक है। Parliamentary standing committees, Saturdays and Sundays as they are approaching, I'll share the PPT before leaving now. गवर्नर वाली पीपीटी भी उसको थोड़ा सा खुद से पढ़ना, क्योंकि उस पर भी मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, वो बहुत फैक्चुअल है। आई विल एक्सप्लेन टू यू कि क्या कमिटीज होती हैं, जेपीसी क्या होता है, खासकर वो न्यूज में रहती है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। तो जो कॉन्सेप्ट वाला फंडा है ना, वो थोड़ा खत्म हो रहा है, अब फैक्ट्स वाला ज्यादा है। मेरे को फैक्ट्स में ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज जैसे टॉपिक्स का भी एनालिसिस, जो लक्ष्मीकांत में नहीं दे रखा, वो पढ़ाना है तुम्हें। सीएजी मल्टी मेंबर बॉडी होना चाहिए या नहीं, वो पढ़ाना है। और तुम में से कितने ऐसे लोग हैं नॉट इन करंट अफेयर्स, ठीक है, नो करंट अफेयर्स, नो CAR लिख देना टेलीग्राम पे कि वी आर नॉट देयर इन करंट अफेयर्स राउंड अप, बिकॉज आई हैव कवर्ड इलेक्टोरल रिफॉर्म्स प्रीटी वेल इन दैट सेक्शन, ठीक है। ऑटो करेक्ट नहीं, ऑटो इनकरेक्ट हो रहा है प्रतीक। नहीं, जो यहाँ पे कवर हो रहे हैं बुक्स में थोड़ा और एनहांस्ड वर्जन मिल जाएगा, तो उसे पढ़ सकते हो, ठीक है। गवर्नेंस पोर्शन में भी कुछ कुछ चीजें कवर होंगी, जैसे कि कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, बट पीएमओ और कैबिनेट सेक्रेटेरिएट को यहाँ पे कवर कर लेंगे, ऑल राइट। Clear guys, any doubts? So next Friday there will be a doubts class in either economy or polity, okay. Thank you everyone, thank you guys.